Dear students, hope you and your family are doing well. So please stay at home and stay safe. Myself Bishwit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Dagapur, Shiliguri, District Darjeeling, West Bengal. So dear students, today we are going to learn about the first unit, aims and objectives of teaching social science. So aims and objectives of teaching social science. So B.Ed second sem, course 7A, unit 1. So basically this discussion for the students of social science, suppose history, geography, sociology and also education. So now let's learn what about social science. एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है, देखिए सोशल साइंस. एक्चुअली वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सोशल एनिमल. सो सबके साथ ये सोसाइटी, सबके साथ सोसाइटी में हमको रहना चाहिए. सबके साथ सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशन है सब हमको पालन करना चाहिए. सो जो बिहेवियर, सपोज बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका रूल्स रेगुलेशन, ये सब कुछ को ध्यान देना चाहिए. सो बेसिकली ये सोशल साइंस जो है ये आपको, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, फाइनेंस, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स. सो ये सब टोटल हम सोसाइटी के साथ रिलेटेड है. सो व्हाट अबाउट सोशल साइंस? लेट्स गो. सोशल साइंस इज ए जेनेरिक टर्म covering the scientific study of man. It is a discipline or branch of science that deals with the socio-cultural aspects of human behavior. The social science generally include cultural anthropology, economics, political science, sociology, history, geography, civics, social psychology, etc. So यहाँ पे देखिए, एक्चुअली रूल्स रेगुलेशन एज ए सोशल एनिमल, हम इंसान हैं, हमको ही रूल्स रेगुलेशन पालन करना है. सो परफेक्ट बिहेवियर ये हमको ही पालन करना है. सो जियोग्राफिकल जो है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जैसे कि वेदर, रिवर, देन रॉक, देन इकोनॉमिक जियोग्राफी, ये टोटल हम सोशल साइंस से हम जानेंगे. सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट लॉज, ये सब हम सीखेंगे सिविक्स से. सो एक्चुअली दिस इज द ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट. वी कैन से दिस इज द ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट. ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, सब मिलके इसको बोला जाता है सोशल साइंस, समाज विद्या. तो ये जितना सब्जेक्ट यहाँ पे रिलेटेड है, ये टोटल सब्जेक्ट रिलेटेड टू आवर सोसाइटी. एक एक से देखिए, हिस्ट्री आपको आगे लेके जा रहा है. हिस्ट्री पास्ट नॉलेज, पास्ट इंफॉर्मेशन आपको आगे लेके जा रहा है. सोशियोलॉजी, हाउ टू बिहेव योर सोसाइटी, हाउ टू बिहेव योर नेबर, ये सब सोशियोलॉजी से हम सीख सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन, आप जो हम जो सोसाइटी में है, डू नॉट, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है. सो समथिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड एंड समथिंग इज़ फॉर आस. सो ये सब रूल्स रेगुलेशन आपको ये पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स दिया जाता है. इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इट ऑल्सो बी रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, बिकॉज विदाउट फाइनेंस वी कांट थिंक. सो ये इकोनॉमिक्स भी आपका
सोशल साइंस रिलेटेड है। सो अकॉर्डिंग टू बेनिंग एंड बिनिंग, the subject that relate to the origin, organization and development of human society, especially to man in his association with other men. And also you can say that according to John Michaels, the social studies are concerned with man and his social and physical environment. They deal with human relationship. So this about social science. So let's go the nature and scope of social science. तो यहाँ पे मैंने some points यहाँ पे highlight किया है. So about nature, a unique combination of various discipline. A unique combination of various discipline. A study of human relationship. A study of man's development through ages. A realistic course of study aims at preparing the learner the helpful social living. These are the nature of social science. And some scope are there. Suppose people of one's own nationality and people across the world. People and various kinds of institution. People and art. People and time. And a study of leading to international understanding. So these are the nature and scope of social science. So now the aims and objectives of teaching social science. So first we will discuss about the different aims. So aims and objectives of teaching social science. So first, acquiring knowledge. सोशल साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आया है। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द पास्ट, you have to study in history. If you know the geographical structure, you should go to geography. If you want to know the different cultural and criteria for social beings, so you have to go through sociology. And if you want to know the different rules and regulation, you have to go through the political science, civics. So ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाएगा। सो अगर एक स्टूडेंट्स को हम परफेक्ट मैन, अच्छा इंसान बनाने के लिए, तो इनको ये सब नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। देन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड क्रिटिकल जजमेंट। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट्स का, एक लर्नर्स का जो रीजनिंग पावर है, क्रिटिकल जजमेंट है, ऑटोमेटिकली ये डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास हिस्ट्री का आइडिया है, उनके पास जियोग्राफी का आइडिया है, उनके पास पॉलिटिकल साइंस का आइडिया है, उनके पास इकोनॉमिक्स का आइडिया है। जब ये टोटल आइडिया उनके पास है, ऑटोमेटिकली ही और शी कैन create, he or she can think about the difficult problem, difficult topic. So and that time they also give proper decision and accurate decision. So the development of reasoning power and critical thinking is one of the most aims of the social science. Develop the national integration and patriotic sense. So हम रूल्स रेगुलेशन पॉलिटिकल साइंस सिविक्स से हम जानते हैं। सो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो ये जैसे कि आपको क्या करना है, अगर ये एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोसाइटी में रह के आपको खराब काम कर रहा है, दैट मीन्स पुलिस इज़ देयर, आपको कानून के मुताबिक आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो जो भी हो, एक स्टूडेंट्स के अंदर में नेशनल इंटीग्रेशन, पैट्रियोटिक सेंस मीन्स
जो पैट्रियोटिक सेंस और नेशनल इंटीग्रेशन जो संहति है, ये एक स्टूडेंट्स के अंदर पहुंचना चाहिए। सो ये मेरा देश है, ये मेरा मातृभूमि है, ये मेरा माँ है, इससे हमको ऐसे चलना है। सो ऑटोमेटिकली दे विल लर्न। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स इज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी जैसे एक देश अकेले नहीं चल सकता है। सो इसके लिए जो नेबर कंट्री है, जो अलग कंट्री है, सबके साथ एक इंटर रिलेशन होना चाहिए, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि फाइनेंशियली दोनों देश में अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो दोनों देश का ही बेनिफिट होगा। एंड ये दोनों देश में, दोनों कंट्री में जो रिलेशनशिप रहना चाहिए, जो समझौता होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, ताकि वो देश भी मेरा काम पे आएगा। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, मैंने बोला था हम सोशल एनिमल हैं। सो आपका जहाँ पे घर है, आपका जो नेबर है, आप नेबर को सो के कभी नहीं चल सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका कुछ होगा तो वो नेबर ही आपके पास आ जाएगा। सो जैसे भी हो, वो नेबर के साथ मेरा अच्छा बिहेवियर, अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि मेरा काम पे लगे। सेम एज उनका भी, जो आपका नेबर है, उनको भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। सो ये है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एक देश के साथ और एक देश का एक समझौता। एक्वायर एंड अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्सेप्ट्स। एक्वायर एंड अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज सोशल कॉन्सेप्ट्स, इसको समझना चाहिए। एक्चुअली যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি সামাজিকতা, ये सोसाइटी रिलेटेड जितना सारा एक्टिविटी हो, ये आपको नॉलेज लेना है, ये आपको समझना है। जैसे देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि घर में जब छोटा बच्चा आते हैं, तो उसको हम बचपन से ही सिखाते हैं आप उनके साथ कैसे बिहेव करेंगे, उनको क्या बोलेंगे। जब बड़ा होगा तो उसको आप बोलिए, और उसको दीदी बोलिए, उसको मम्मी बोलिए, उसको अंकल बोलिए, उसको आंटी बोलिए। तो ये हम सिखाते हैं। अगर कोई वो मिसबिहेव करता है किसी के साथ, हम उनको सिखाते हैं, नो ऐसे नहीं है, आपको ऐसे बोलना चाहिए। सो ये जो हम सिखाते हैं उसको, देखो किसी के साथ खड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। ये देखिए, हम बचपन से ही एक बच्चे को सिखाते हैं हर टाइम। सो दिस इज़ एक्वायर एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट, क्योंकि हमको सोसाइटी में रहना है। नेक्स्ट इज इनकलकेटिंग सोशल वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। नेक्स्ट, मेक्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। जब नॉलेज आपके पास टोटली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तब आप ऑटोमेटिकली सोचेंगे व्हाट टू डू, व्हाट डू नॉट। डेवलप अवेयरनेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका भी अवेयरनेस का ज़रूरत है कि बहुत सारा हम सोचते हैं दूसरा देश नेशनल इंटीग्रेशन में, जैसे कि ये स्टेट में हो जाता है। सो सबके साथ मिल के रहना है, सबके साथ अच्छा बिहेव करके चलना है, अच्छा व्यवहार करके चलना है। सो नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग सेम एज, सब देश के साथ आपको ठीक से चलना है। ये जो अवेयरनेस है, ये अगर आप वेल एडुकेटेड है, आपके पास ये नॉलेज है, तो ये आप किसी को अवेयर कर सकते हैं, ये आप किसी को बोल सकते हैं, देखो भाई ऐसे चलना है। सो ऐसे ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गुना इंक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट, सोशलाइजेशन एंड लास्ट वन इज डेवलप पीस ऑफ माइंड। सो ये था एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सो यहाँ पे भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किया, जैसे कि सिंपली हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टू डेवलप कल्चरल इंटरेस्ट, एक स्टूडेंट्स का कल्चरल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा।
जैसे कि कल्चरल देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो इसमें सब जो त्यौहार होते हैं, हम सब त्यौहार को ही हम सब आदमी ने मनाता है। हम क्रिसमस भी मनाता है, हम दुर्गा पूजा भी मनाता है, हम ईद भी मनाता है, हम दिवाली भी मनाता है, सब कुछ। मतलब ये कल्चरल जो डिफरेंट रिलीजियन यहाँ पे है, तो ये डिफरेंट रिलीजियन का जो डिफरेंट कल्चर है, ये कल्चर को अंडरस्टैंड, ये कल्चर को समझ पाएगा स्टूडेंट्स इजीली, और ये कल्चर को ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आएगा सबके अंदर में। तो ये उनका कल्चर है, मतलब ये सबका कल्चर, ये मेरा कल्चर है, तो उनका कल्चर मेरा कल्चर, उनके पास जितना इम्पोर्टेंट है मेरा कल्चर मेरे पास उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो सब कल्चर को ही आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्यूमुलेट सर्टेन डेफिनिट नॉलेज ऑफ पास्ट। नेक्स्ट, टू डेवलप द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमैनिटी एंड विद नेचर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, टू analyze the way of life of the people all over the world। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पीपल्स है, टू एनालाइज द वे ऑफ लाइफ, आदमी टोटल आदमी का जो वे ऑफ लाइफ है आप एनालाइज कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास टोटल नॉलेज है। सो यू ओनली यू कैन गेट नॉलेज थ्रू सोशल साइंस, क्योंकि यहाँ पे भी सोसाइटी है, इंग्लैंड में भी सोसाइटी है, अमेरिका में भी सोसाइटी है, ये हर जगह पे सोसाइटी है, जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स है, वहीं पे ये सोसाइटी है। सो ऑटोमेटिकली आप गेस कर सकते हैं सब में ही कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है। सो टू अप्लाई साउंड इकोनॉमिक थ्योरीज टू एवरीडे लाइफ, to provide the information about social arrangement to maintain peace and order, to develop democratic values, ये भी एक बहुत important point है, to develop democratic values। Next, to make ability to analyze political system and behavior, and last one is to develop awareness of individuals on the relationship of human existence with the political life they have। सो ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सब आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।